अस्सलाम वालेकुम जनाब। ऑडियंस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज यूथ वेबिनार सीरीज नंबर 53 के साथ हम हाजिर हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आए हैं। टॉपिक की नीड है, आजकल बात करते हैं डिग्री चाहिए इम्पोर्टेंट है या एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है, स्किल इम्पोर्टेंट है। इसी हवाले से जब एक्सपीरियंस की बात होती है तो इनिशियल एक कि बिल्डिंग एक्सपीरियंस विदाउट अ जॉब टाइटल। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि बिल्डिंग एक्सपीरियंस विदाउट अ जॉब टाइटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि बहुत जगहों पे ना इनिशियली आपकी एंट्री हो जाती है, बट लोग उस एक्सपीरियंस को मांगते हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, जिसमें रियल काम हो, जिसमें आप चीजें मैटर करें, जो आप रिजॉल्व कर सके चीजों को, आप कोई पार्ट प्ले कर सकें, अपना कोई रोल आपका हो उसके अंदर जिसमें वैल्यू एडिशन कर सके। उसी टॉपिक के हवाले से आज हम हाजिर हुए हैं। और इन कम्पिटिटिव एंड रैपिडली इवॉल्विंग जॉब मार्केट, वेटिंग फॉर अ परफेक्ट जॉब टाइटल इज नो लॉन्गर द स्मार्ट करियर स्ट्रैटेजी। एम्प्लॉयर्स टुडे वैल्यू एक्सपीरियंस, इनिशिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। और इसी हवाले से आज हम बड़े लर्निंग स्पीकर्स को हमने इजाजत दी है। पहले स्पीकर है हमारे अबू बकर सिद्दीक अलवी साहब, Human Resource and Organization Development Expert. अबू बकर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। मैं इंट्रोड्यूस कराऊं, अबू बकर सिद्दीक अलवी साहब is a global HR and organizational development leader with over 20 years of experience driving large-scale organizational transformation across FMCG, manufacturing, consulting, retail, and education sector in Pakistan and the United States. His last assignment was Chief Human Resource Officer at Punjab Group, where he leads enterprise-wide people strategy aligned with business growth, operational excellence, and culture transformation. A Fulbright scholar with an MS in organizational development from the Johns Hopkins University and an MBA from Zabist, he brings a strong blend of strategic insight and execution capability to HR leadership, recognized for building high performance cultures and leading complex restructuring initiatives. He has a proven track record in embedding digital HR solutions such as SAP, HRIS, aligning talent strategy with measurable outcomes, including cost optimization, employee engagement, and productivity improvement. As a member of Mensa International, he applies analytical rigor and innovation problem solving to talent acquisition, leadership development, and change management initiatives. Abubakar Saab, welcome to our webinar. Thanks for joining us. आज के दूसरे हमारे लर्नर स्पीकर हैं जिशान सुभान बंदेशा साहब। इज अ फाउंडर ऑफ PIPD Institute of Professional Development. Zishan Subhan Bandesha brings over 10 years of experience in human resource and currently leads HR operations at Lucky Plastic Industries and Park Falcon Industries. His expertise spans core HR functions, including talent acquisition, learning and development, payroll management, performance management, HR audits, and industrial relations. As the founder of PIPD, Pakistan's first freemium HR training institute, Zishan has played a pivotal role in training thousands of HR professionals. His work emphasizes a community-driven approach to HR digital transformation and the integration of AI into HR processes. He is actively involved in current organizational development, leadership training, and ensuring compliance with labor laws such as EOBI, Social Security, and WWF. निशान साहब, बहुत थैंक शुक्रिया यू आपने ज्वाइन किया हमें, थैंक यू सो मच। और आज के जो तीसरे हमारे लर्नेड स्पीकर हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपने बल पे के फाउंडर, उनका ब्रेन चाइल्ड है अपने बल पे, अरशद महमूद आकिब साहब, एंटरप्रेन्योर, HRM expert and chief executive officer of ASK Development. Arshad Akif is an HRD professional consultant and entrepreneur with over 20 years of experience in corporate and development sectors in the field of human resource management, management and leadership, HR outsourcing, youth development and employment, and soft skills. He is a member of ISO 260 in 2 international working groups on recruitment and diversity and inclusion. Also member of National Mirror Committee of PSQCA, Pakistan, on HRM standards development. Arshad bhai, thank you so much for joining us. थैंक यू। टॉपिक पे आते हैं जी, बिल्डिंग एक्सपीरियंस विदाउट अ जॉब टाइटल। आज का वेबिनार फोकस करेगा कि हाउ इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग एंड साइड प्रोजेक्ट्स कैन सर्व एज ए पावरफुल करियर एक्सेलरेटर, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड फ्रेश ग्रेजुएट्स। अबू बकर साहब, सर आपकी तरफ आता हूँ। आज हमारा जो मेन ऑडियंस है वो यूथ है, यंग प्रोफेशनल्स हैं। हम बात करते हैं, कभी कभी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस डिबेट में कि जी डिग्री और की जरूरत नहीं है, स्किल बेहतर है, बट वो ये चीज भूल जाते हैं कि जब ये बात होती है तो उसके बैकग्राउंड में कुछ होता है, कुछ ऐसी चीज होती है जो आपको हासिल करनी होती है, जो बहुत जरूरी होता है। सर, इस टॉपिक पे आप अपने अल्फाज में हमारे ऑडियंस को।
सब म्यूट आपका माइक प्लीज ओपन कर लें। अबू बकर साहब माइक आप अनम्यूट कर लें जी। जी थैंक यू Am सो I मच। audible now? यस यू आर ऑडिबल। Yes, yes, sure. Okay, Zabardast. Puram Saab, thank you very much for kind of building the base on the topic. The skills versus degree debate is still on, and it's probably going to continue for a while. Keeping that aside, I think जो starting point है किसी भी ऐसे student का जो job market में enter हो रहा है या होने के लिए ready हो रहा है, plus who have already entered the market, but they're kind of using their degree to secure jobs rather than experience at the moment. For all of those people, I think the most important thing is to gain that experience, and that experience or the time spent doing something that adds value to any system is what is their currency to sell to a potential employer or to a potential business. So अगर आप बात करें स्टूडेंट लाइफ साइकिल की, तो स्टूडेंट लाइफ साइकिल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कहाँ मिल रहे होते हैं? फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेट योरसेल्फ engaged in is any student related activities where you get opportunity to organize things, plan things, execute things, deliver things, engage with certain set of students, आपके peers, आपके juniors, आपके seniors, और आप एक ग्रुप में की शक्ल में या एक प्रोजेक्ट की शक्ल में कुछ डिलीवर करते हैं, जिसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. सो यू कैन स्टार्ट गेनिंग दैट एक्सपीरियंस. उसमें आप क्या चीज़ें सीख रहे होते हैं? उसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीख रहे होते हैं हाउ टू डील विद पीपल. Second, you understand how to set targets and objectives, how to meet deadlines, how to use other people to deliver your objectives. Fourth most important thing, you learn negotiation. When you are working in groups and student projects होते हैं आपके या यूनिवर्सिटी के कोई different events होते हैं, you are negotiating with the outside world, you are negotiating with vendors, you are negotiating with potential employers, career fair organize करा रहे हैं तो company से बात कर रहे हैं, उनको sell कर रहे हैं, उनको attract कर रहे हैं, blah blah blah. So all of this comes into play. Now moving on to a more practical experience, you are supposed to go for an internship, and in some programs or some degree programs you are also asked to go for practical projects जो कि आपकी डिग्री की completion का part होते हैं. So you end up doing something really tangible. So those are very good experiences to build your career and start your journey. Acha. Now when you close your degree program, the first thing you or any one of us when we were at that age were aspiring to do was to secure a job for ourselves. And then you have this plethora of organizations trying to attract students for management training programs. वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल और सिलेक्टिव होना चाहिए फॉर एनी एस्पायरिंग young graduate, that they should do their homework not when they are graduating. They should start doing their homework 2 years in advance or at least 1 year in advance. They should start exploring organizations. They should start exploring the work cultures in those organizations now, because everything is so much available on social media. Good employers have their social handles, they have their LinkedIn pages where they're showing their best, they're showing their employees, they're showing their leadership, they're showing how the work looks like in the organization, they're showing off their events, their activities, their engagements. All of that gives a new joiner a lot of hope. Plus you start connecting with people who are in that organization, especially if you are coming from a good school, good business school, good engineering school, good university. You will always have alumni working in various organizations. So you can start connecting with them beforehand and building your social and professional network at the same time. And then when you're applying for internships or jobs, you can use them as referrals. So I think this is what I see as a starting point. Anyone who's in the job market, just a last point, anyone who's in the job market and they're in the starting years of their career, uh, the most important thing that they need to focus on is gaining as much experience as they can, instead of looking for titles, instead of looking for positions, instead of looking for, okay, so I did my master's or my undergrads with a specialization in HR. So if I don't get a job in HR, I'm doomed, or I'll be sitting for another 6 months, 8 months to secure a job. Just get
onto an organization, start preparing yourself to explore what else you can do besides what you studied. Your majors are generally 2, 3, 4 courses that you do, right? And you seem to be an expert in that, and you feel कि मैंने इसी में काम करना है. So I think that's my starting point for the conversation. सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। निशान, आपकी तरफ आते हैं। निशान, एक चीज बड़ी आजकल इंपॉर्टेंट है कि इन टुडेज जॉब मार्केट योर जॉब टाइटल मैटर्स लेस देन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जब आप फील्ड पर आ गए और एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ऐसे हमने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं अब, तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि डेजिग्नेशन तो एक है, बाहर वालों के लिए है, खासतौर पे विद इन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट हैव यू बिल्ड, सॉल्व, कंट्रीब्यूटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आज का टॉपिक यही है कि जो एक्सपीरियंस विदाउट अ जॉब टाइटल, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द जॉब टाइटल, जॉब है नहीं है, जो एक्सपीरियंस लर्न करते हैं। तो प्लीज आप ऑडियंस को अपने से। सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बातें अबू बकर अलवी साहब ने की, और आई थिंक सो कि वो तमाम चीज़ें जो हम यूनिवर्सिटीज़ में रहते हुए कर सकते हैं, अगर आप टॉप नॉच किसी बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे हैं या नॉन बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो वो जो टॉपिक बाकी रह गया कि अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जहाँ पे शायद वो सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट उतना नहीं है, सेमिनार्स का कॉन्सेप्ट उतना नहीं है, तो वहाँ पे क्या किया जाए? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के देखें ड्यूरिंग योर स्टडीज, या आप अफोर्ड ही नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपको पार्ट टाइम काम करना है अपनी स्टडीज को फंड करने के लिए, आप किसी टॉप नॉच फैमिली से नहीं आ रहे, आपका बैकग्राउंड आपको सपोर्ट नहीं करता उतना कि आप आराम से इंजॉय करते हुए स्टडी करें और सोसाइटीज के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करें, देन वहाँ से आप अपने करियर को लेके चलें। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो की जा सकती हैं। आप इनफैक्ट अगर आप लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, या किसी भी और सिटी में, आजकल कॉल सेंटर का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। एज लॉन्ग एज कि आप अच्छे कॉल सेंटर्स की तरफ जाएं, रेदर देन कि आप सिर्फ किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में फंस जाएं कि जो स्पैमिंग को लेके काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी लर्निंग है। आई पर्सनली नो सो मेनी पीपल जिन्होंने बहुत ज़्यादा नीच से स्टार्ट किया, छोटी छोटी जॉब से स्टार्ट किया, और वहां से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट किया। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे किसी फैशन ब्रांड के रिटेल स्टोर पे सेल्समैन की छोटी मोटी जॉब करके आप एक्सपीरियंस लेना चाहें, आप चाहे किसी फूड चेन पे जाके काम करके एक्सपीरियंस लेना चाहें, या आप किसी कॉल सेंटर से एक्सपीरियंस लेना चाहें, गोल इज मस्ट बी के आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इम्प्रूव करें। और दूसरा, जिस डोमेन में आप स्टडी कर रहे हैं, अगर वो स्टडी करते हुए आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा डेजिग्नेशन है जो शायद उन कंपनीज में एग्जिस्ट करता है, किसी रिटेल चेन में एग्जिस्ट करता है, कि ये मैं उन जॉब्स के रेफरेंस दे रहा हूँ जो इजीली मिल सकती हैं, अगर हम अपनी ईगो से बाहर आ जाए और हमें लगे कि हमने ग्राउंड पे काम करना है और कुछ बिल्ड करना है, तो आराम से आप किसी भी फैशन रिटेल स्टोर के सेल्समैन की जॉब नॉर्मली मिल जाती है, किसी भी आपको मार्केटिंग की छोटी मोटी जॉब मिल जाती है, जहां से आप अर्निंग भी कर रहे होते हैं, आप अपनी एजुकेशन को भी फंड कर सकते हैं। लेकिन गोल ये होना चाहिए कि जो पोजीशन इंटाइटल्ड आपको हो सकती है आपकी एजुकेशन के बाद, अगर आप फाइनेंस में जॉब कर रहे हैं, आप सप्लाई चेन में जो आप स्टडी कर रहे हो, सॉरी, या अगर आप एचआर में स्टडी कर रहे हो, कोई भी नॉन टेक, शायद आप इस्लामियात में आपका एमए चल रहा है, इंग्लिश में आपकी डिग्री चल रही है, उर्दू में आप कर रहे हो, क्योंकि अगर तो टेक की है तो टेक को लेके तो आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है या नहीं है, बहुत सारे रूम खुले हैं। लेकिन वो तमाम लोग जिनके पास टेक, जो सीएस में स्टडी नहीं कर रहे, उनके लिए स्टार्ट करने के लिए, उनको ग्राउंड पे काम करने के लिए जहां पे चांस मिले वो करें, लेकिन अपनी डिग्री के रेलिवेंट वो डेजिग्नेशन जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और उन कंपनीज में एग्जिस्ट करते हैं जहां पे वो जाके काम कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट हैंड नॉलेज लेने की कोशिश करें, वहां लोगों को मिलने की कोशिश करें, उन डेजिग्नेशन के लोगों को, और ऑफ द जॉब उनको कॉफीज पे, डिनर पे आप लोग इनवाइट करके उनसे मिल सकते हैं कि वो क्या काम करते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को आप रियल टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। यूनिवर्सिटीज में अगर, तो आपको, जैसे अबू बकर साहब ने ऐड किया कि अगर इवेंट्स का, सेमिनार का, कॉन्फ्रेंस का, या कोई और जो फंडिंग रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या आपको मिलते हैं यूनिवर्सिटीज में, अगर तो आप वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर रहे, वो चांस आपको नहीं मिल रहा, या वो आपकी यूनिवर्सिटीज का एटमॉस्फेयर उतना नहीं है, और आप किसी टियर 2 टियर 3 यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, आने की जरूरत है। और स्किल सेट मैटर्स द मोस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर मैटर द मोस्ट।
कम्युनिकेशन मैटर्स द मोस्ट। और डिग्री जो अबू बकर साहब ने भी कहा कि ये अभी रहेगा डिबेट में कि डिग्री की इंपॉर्टेंस है या स्किल सेट की है। स्किल सेट अब बहुत आगे जा चुका है, लेकिन डिग्री की इंपॉर्टेंस वहीं पे है। डिग्री इज अ गेटवे। अगर डिग्री नहीं है तो आप मेरिट की एलिजिबिलिटी को मैच ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी मेडिकल बिलिंग कंपनीज हैं, हालांकि वो शायद इंटर पास लोग भी वहां पे काम कर सकते हैं, डिग्री की रिक्वायरमेंट आ जाती है। नीच छोटी छोटी जॉब्स के लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो डिग्री मैटर्स, हमें उसके ऊपर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। डिग्री बताती है कि हम कितना कंसिस्टेंट है लाइफ में। डिग्री बताती है कि हम कितना मच्योरली एक चीज के साथ कंसिस्टेंटली ऑनेस्ट हैं, कि आपने 4 साल डिग्री लेने में लगाए हैं तो उतना ही जॉब के लिए भी हम सिंसियर होंगे, जो कि आजकल बहुत सारा प्रॉब्लम भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल की जो जनरेशन है वो कम टाइम में स्विचेस कर रही है। तो स्किल सेट सीखें, रेलिवेंट स्किल सेट सीखें, जो जो हमारी जॉब के रेलिवेंट हो सकते हैं जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। जो डेजिग्नेशन हमें लगता है कि ये एक दो डेजिग्नेशन हमें हमारी जॉब के रेलिवेंट हमें ऑफर हो सकते हैं, वो अगर वही सेम हमें डेजिग्नेशन नहीं भी ऑफर हो रहे, उनसे मिलते जुलता कहीं कोई भी काम मिल रहा है, लेकिन वो स्किल सेट जो उसके लिए रिक्वायर्ड है वो हमें किसी भी जगह से मिल रहा है, तो उसको पूरा कीजिए अपनी डिग्री कंप्लीट होने से पहले पहले, या पोस्ट डिग्री एज सुन एज इंटर्नशिप में जाने के बाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया दिशान, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा एक होता कि एक्सपीरियंस कैसे बिल्ड करें, फॉर्मल जॉब ना हो, जैसे आपने कहा कि फारिग नहीं रहना चाहिए। और हर एक और ऑडियंस याद रखिएगा, जब आप जॉब में जाते हैं या इवन एंटरप्रेन्योर बनते हैं, एक तो वो स्किल्स या वो नॉलेज, स्किल की बात नहीं करूंगा, नॉलेज होती है जो आपने पढ़ा होता है, बट जी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपने डायरेक्टली नहीं पढ़ा होता, वो भी काम होती है। अर्षद भाई आपकी तरफ आते हैं। तो भाई हम बात कर रहे थे स्किल्स कैसे हासिल करें या विदाउट फॉर्मल जॉब, turning skills into valuable visible outcome, turning skills into visible outcome। एक तो इस टॉपिक के बारे में ऑडियंस को अपनी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, और इस चीज को देखिएगा कि कैसे अपनी स्किल्स को, जो है स्किल आ गई, मेहनत भी कर ली, चीजें भी है, स्किल है, कुछ इनबोर्न भी होती हैं, उसे विजिबल आउटकम में कैसे कन्वर्ट किया जाए आफ्टर टॉक। जी थैंक यू। हमारे दोनों फाजल स्पीकर्स ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है और आई थिंक दे लेफ्ट अ वेरी लो रूम फॉर मी टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट। और आपके क्वेश्चन को देखते हुए मैं एक बात उससे पहले अर्ज करना चाहूँगा कि वेयर डू वी स्टैंड टुडे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है कि आउट ऑफ 225 मिलियन यानी 25 करोड़ में से इस वक्त जो नौजवान हैं दे आर अबाउट 11.1%, यानी कि 2 करोड़ 70 लाख, कोई पौने आप कह सकते हैं कि 3.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है पाकिस्तान के अंदर। और हमें वर्ल्ड बैंक के जो एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कोई 10% है। तो ये मिलते जुलते फिगर्स हैं, मगर पाइट जो पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है वो 16% की बात करता है। गोया 3 करोड़ से भी ऊपर की कोई 4-5 करोड़ की बात वो कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड है। हर साल यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट निकलते हैं वो 4.5 लाख से 5 लाख हैं। तो अब आप इसमें इजाफा करते चले जाइए कि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है, जबकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करें, इन अदर वर्ड्स क्रिएशन ऑफ जॉब्स, तो वो तो हमारे यहाँ बहुत कम है, बल्कि फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं फॉर सर्टन रीज़न, वो हमारा आज का मौजू नहीं है। तो हालात तो बहुत मुश्किल है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक और स्टडी मेरी नज़र से गुजरी जो उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर की है, और उसमें उनका ख्याल है कि जो स्किल गैप है, यानी जो डिग्री लेके नौजवान हमारा बाहर आ रहा है या आ रही है, जो उसने पढ़ा है उसे इम्प्लीमेंट करने और उसको अप्लाई करने के अंदर उसकी एबिलिटी बहुत कम है, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करती। दैट इज ऑन अलार्मिंग। तो ये हमारे चैलेंजेस। तो चैलेंजेस बताने का मकसद ये नहीं है कि आप खौफजदा हों, क्योंकि देखें ना, अगर सर्दी बढ़ जाए, बर्फबारी हो जाए, तो क्या हम गर्म कपड़े पहनने छोड़ देते हैं? हम और पहनेंगे, हम अपने माहौल को गर्म रखने का सोचेंगे, ठीक है ना।
और अगर आपको एक वक्त का खाना ना मिले तो क्या दूसरे वक्त पे फिर हम खाएंगे नहीं? नहीं, हम तो पहली भूख को भी पूरा करेंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग कि यस, सिचुएशन इज नॉट गुड, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ मोर देन डबल एवर बिफोर। पहले जो हमें तो होती थी कि भाई डिग्री पकड़ो तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अब वो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल सेट। ठीक है। और जब यहां से अब आपने जो क्वेश्चन किया था कि वो जो नॉलेज है उसको स्किल में कैसे बदलें, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारी यूनिवर्सिटीज अच्छा पढ़ा रही हैं, आप भी अच्छा पढ़ रहे होंगे, आपके पास ग्रेड भी अच्छा आ गया होगा, लेकिन क्या जो आपने पढ़ा उसे प्रैक्टिकली करके देखा? क्योंकि क्वेश्चन अब ये नहीं है कि आपकी डिग्री को वेरीफाई किया जाए, आपके नॉलेज को चैलेंज किया जाए। द एम्प्लॉयर इज चैलेंजिंग व्हाट यू कैन डू एट अ वर्क प्लेस। अब उसके जो तरीके हैं वो तो जीशान साहब ने और वो बकर साहब ने बड़ी तफसील से बता दिया है, मगर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आर टू टू थिंग्स। वन, कि सिचुएशन इज क्रिटिकल और आपको अपना एफर्ट लेवल बढ़ाना होगा, नखरे छोड़ने होंगे। वालदैन ने काफ़ी पैम्पर कर लिया है, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ जो बच्चों का बड़ा ख्याल रखते हैं। और नतीजा ये है कि हमारे बच्चे कहते हैं जैसे डिग्री मिले तो बस एक मल्टीनेशनल का दफ्तर होना चाहिए और एक कंडीशन लगा हो। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होने वाला। यू हैव टू हैव अर्न योर ओन स्टेटस, एंड टू gain a to get a status you have to have develop your skill set। और उसके लिए आपको अपनी ईगो को एक साइड पे रखना होगा और ये नहीं देखना, क्योंकि जो आप इंटर्नशिप कर रहे होगे, जैसे ईशान साहब ने कहा कि आप इवन किसी क्लोथिंग के उस पर चले जाएं, कोई रिटेल की बहुत सारी जगह हैं जहां जा सकते हैं, किसी सेल्स फोर्स का हिस्सा आप हो जाएं, किसी सीनियर के साथ लग जाएं, जो भी कोई काम कर रहा है, जो भी आपका फील्ड है, मसलन कोई सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ लग सकते हैं। आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो प्रोफेसर साहब के साथ चले जाएं, उनके नोट्स बनाने में उनकी मदद कर दें। आप आईटी में हैं तो इतने सारा जो लोग हैं वो ऑनलाइन भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप किसी के साथ विदाउट मनी हो जाए, क्योंकि इंटर्नशिप और लर्निंग इज नॉट योर डेस्टिनी, दिस इज योर जर्नी। आप जर्नी को जितना बेहतर करेंगे तो आपकी डेस्टिनी उतनी करीब होगी और आप बेहतर टाइमिंग के साथ अपनी डेस्टिनी पे पहुंच सकेंगे। सो 2 points again I would like to repeat: one, situation is not good, so you have to have work double of the usual, अपने आप को ये कर लें। सेकंड, आपकी लर्निंग आपकी जर्नी है, आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सईद। अबू बकर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जैसे अभी हमने बात की, हमारे अरशद भाई ने बात की, आपने भी बात की, निशांत ने भी बात की कि कहीं भी इंगेज हो जाएं, हर तरह का एक्सपीरियंस काम होता है। एक बहुत बड़ी शिकायत आजकल की जवान नस्ल कर रही है, हाउ टू प्रेजेंट नॉन ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस इफेक्टिवली ऑन सीवीज एंड लिंक्डइन। वो कहते हैं जी हम बिल्कुल तैयार हैं, अब हमें कोई मिलता है, मतलब हमने आज से जब थी, जब जब 40 साल पहले आप कह ले तकरीबन उसमें थे, तो भी छोटे मोटे काम कर लेते थे लोगों के एक मतलब सीखने के लिए किसी फॉर्म में जाके टैक्स रिटर्न भरनी। मुझे याद है 91 में थर्ड ईयर में था, तो मैं एक टैक्स कंसल्टेंट है उनके पास जाके टैक्स रिटर्न भरने में उनकी मदद किया करता था। आजकल वो फिर भी रेलेवेंट था, आई एम अ फाइनेंस पर्सन। सबसे बड़ी है कि नॉन ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस को, Okay. इन चीजों को आप कैसे कन्वर्ट करें अपने सीवी में और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में कि वो अट्रैक्टिव नजर आए, या लोग समझें कि हाँ भी ये कुछ काम किया होता है, नॉलेज है, सब कुछ है, आता है, आपने पब्लिक डीलिंग कर लिया, आपने अगर किसी क्लोथिंग लाइन में आप सेल्समैन बन गए, आप जे डॉट पे चले गए, किसी और पे चले गए, केएफसी में चले गए, बड़े अच्छी पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं, तो उसको कैसे कन्वर्ट करें या कैसे प्रेजेंटेबल बनाएं उस एक्सपीरियंस को। I think that's a very good question. What generally people don't understand is that their experience is resulting in them developing something in themselves and their personality. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप लेट्स से KFC के एक आउटलेट पे आप बिहाइंड द काउंटर ऑर्डर टेकर भी हैं और ऑर्डर डिलीवरी भी कर रहे हैं। ऑर्डर डिलीवरी का मतलब डिलीवरी मैन नहीं है, बट बिहाइंड द काउंटर आप कस्टमर एंगेज कर रहे हैं। आप वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? आप कस्टमर लेने आया है जिंगर बर्गर,
आपने उनको कहा आपको पता है कि हमारी एक ऑफर चल रही है, उसमें जिंगर बर्गर तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन अगर आप 2 जिंगर बर्गर लेंगे तो उसके साथ आपको आइसक्रीम फ्री मिलेगी। तो आपने अपसेल किया, ठीक है। जब आपने अपसेल किया तो आपने एक बंदे को अपनी सेलिंग स्किल से इन्फ्लुएंस किया और उसने ज्यादा सेल कर दी, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर दिया आपने केएफसी के लिए। सो व्हाट यू unintentionally done is you have upsell your menu, you have created more revenue in that transaction, and you have added value. वो एक बंदा एक बर्गर लेने आया था, आपने 2 बर्गर और एक आइसक्रीम उसको बेच दिया, आपने अपनी इन्वेंट्री भी कंज्यूम करा दी, आपने एक एडिशनल सेल भी कर दी, और आपने अपनी एज अ पर्सन अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दिया दैट यू कैन अपसेल, यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल. So what somebody can do when whatever they experience, आप उस एक्सपीरियंस की लर्निंग को और उस लर्निंग की बेसिस पे आपने अपने अंदर क्या स्किल्स डेवलप की, नेगोशिएशन इंप्रूव की, इन्फ्लुएंसिंग स्किल बेहतर की, वर यू बिकमिंग अ बेटर कम्युनिकेटर, वर यू बिकमिंग अ बेटर नेगोशिएटर, वर यू एबल टू मे बी सॉल्व अ प्रॉब्लम. सो आप उस एक्सपीरियंस के को शेयर करने के बजाय उस एक्सपीरियंस से आपने अपने अंदर क्या डेवलप किया वो बताने की कोशिश करें, तब रेलेवेंस क्रिएट होगी, और आप उस चीज को फिर अपनी जॉब में या पोटेंशियल जॉब में पोटेंशियल एम्प्लॉयर को अपसेल कर सकते हैं कि जी हमने ये चीज सीखी और इसको मैं इस तरह अपने काम में यूज कर सकता हूँ. ऑब्वियसली यू विल नॉट नो द कंप्लीट पिक्चर ऑफ दैट रोल और ऑर्गेनाइजेशन. हो सकता है आपने जॉब एड में जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा हो, बट ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, नेगोशिएशन पावर कितनी यूज करनी पड़ती है, पॉलिटिक्स कितनी है, कल्चर एम्प्लॉय फ्रेंडली है नहीं है, टॉप लीडरशिप ड्रिवन है या एम्पावरमेंट है, लेयर्ड है, ये सारी चीजें आपको सिस्टम में जाने से पहले नहीं पता चल सकती, सिस्टम में जाने के बाद पता चलती हैं. आई थिंक दैट्स वन वे यू कैन डू इट. द अदर वे इज that every time you experience something, for example मैं कभी recently एक HR की junior resource hire करनी थी, तो I met a girl and she had studied from UCP Lahore, and she was selling candles, scented candles, जो वो खुद बना रही थी. 2 साल से वो ये काम कर रही थी और अपने इंस्टा पेज पे भेज भी रही थी. सो शी वॉज मेकिंग डिसेंट मनी एंड शी हैड अ कंप्लीट बिजनेस सेंस. वो चीजें भी खरीद रही थी, रॉ मटेरियल्स भी खरीद रही थी, वो उसके बाद डिलीवरी वालों से भी डील कर रही थी डिलीवरी पैकेज करने के लिए, और उसके बाद कस्टमर के ने रिटर्न कर दिया उसको भी हैंडल किया उसने, क्राइसिस भी हैंडल किया उसने. तो ये सारी चीजें वो देख के आ रही थी. So she had dealt with a lot of people and she was using that learning to tell me that she can deal with all kinds of people in HR. It is indeed, definitely. You're 100% right. जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और सेकेंडली टाइम ज्यादा होता है, इसलिए कि जिस स्केल पे आप चीजों को टैकल कर रहे होते हो वो रूटीन में नहीं मिलता आपको. आप रियल कहना बिल्कुल. रियल फील ले रहे होते हो. निशान, आपकी तरफ आता हूँ. निशान, is it true that nowadays employers now value skills and outcomes more than the job titles they had, like the people had? वो क्या skills को और इन चीजों जो आउटकम्स होती हैं, जो प्रूवन चीजें होती हैं, उनको ज्यादा वैल्यू करते हैं? सो डेफिनेटली 100% ऐसा ही है, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट रहा, और रिसेंटली भी हमने कुछ रिक्रूटमेंट की, और बहुत सारे डेजिग्नेशंस ऐसे थे जहाँ पे हमें शायद डेजिग्नेशन से बाहर निकलना पड़ा और हमें सीवी को वैल्यूएट करना पड़ा. आईटी में तो ये बहुत हद तक ये चीज़ मैच्योर हो चुकी है, लेकिन अब हम शायद टाइटल को पढ़ना हम कब के छोड़ चुके हैं, प्रोबेबली फ्रॉम द लास्ट 2-3 इयर्स, जब से हमने ज़्यादा एटीएस को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है, या एटीएस की वजह से हम सीख गए या हमारी वजह से एटीएस में हम चेंजेस कर पाए, और वो यही है कि हम जेडी को पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं. पहले एक टाइम था कि हम कहते थे सीवी दे दो, फिर कहते थे रिज्यूमे दे दो, फिर अब अगेन हम वेल ड्राफ्टेड क्राफ्टेड, हमें एक्सप्लेन जो है ना वो जेडी के साथ आपका चाहिए रिज्यूमे सीवी, और हम ताकि हम स्टडी कर पाएं कि भैया आपने किया क्या है, उसमें क्या स्किल सेट है जिसके ऊपर आपने काम किया है, क्या टास्क हैं जो आप कर चुके हैं. और ये आई कम्प्लीटली एग्री टू योर पॉइंट, और दैट्स द रीजन जो मैंने पहले भी बात की, और आकिब साहब और बकर साहब ने जो बात की, कि काम आप जो भी करें उससे कोई ना कोई ऐसा स्किल सेट आप सीखें जो आपकी डिग्री के रेलेवेंट, जो पोजीशन आप ढूंढ रहे हैं, जो आप फोरकास्ट कर रहे हैं कि मुझे अपनी डोमेन की जॉब चाहिए, और उसमें जो उसकी जेडी में जो स्किल सेट आते हैं, वो अगर आपको वो पोजीशन नहीं मिल रही तो कहीं और से सीख लें.
वो कहीं और से सीख लें और वो वहां पे कन्वर्ट किए जाएं, ताकि आपकी जेडी में। और एक पॉइंट और, कि हम अपनी सीवी में, ये बड़ा इजी हो गया है आजकल जब से एटीएस को लेके आया है, सिस्टम्स आ गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हम अपना सेल्फ लर्निंग का, ऑल वी नीड टू डू, कि हम अपने स्किल का एक सेपरेट सेक्शन बना दें, सेल्फ स्टडी का एक सेपरेट सेक्शन बना दें, और उसमें हम वो तमाम चीजें मेंशन कर सकते हैं जो स्किल्स हमने लर्न की हैं। हमारे पास अगर कोई, अब किसी ने बीबीए किया है, किसी भी डोमेन में किया है, कोई भी डिग्री कर ली है, अब जरूरी नहीं है कि उसने किसी जगह प्रैक्टिकल काम किया और वो उसको लिखना भी चाहे। बाज बात हमारा ये भी एक्सपोजर रहता है कि हमने किया तो है लेकिन हम लिखे ना, क्योंकि वो हमारी पोजीशन के रेलेवेंट नहीं है। तो अगर हम उसको एज ए जॉब नहीं इंटाइटल करना चाह रहे, नो प्रॉब्लम, वो स्किल सेट किसी और तरह उसको कन्वर्ट करके हम अपनी लिख दें, अपने सेल्फ स्टडी के सेक्शन में लिख दें, हम अपने स्किल्स के सेक्शन में लिख दें, ताकि एटीएस जब उस सीवी को पास करे तो हमारा रैंक आए। और एटलीस्ट हम सीवी को जब पास होगा, वहां पे अगर हम शॉर्टलिस्टेड हो गए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो हम ऑलरेडी मीट कर रहे होंगे हमारी डिग्री की वजह से, हमारे बाकी अगर कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसकी वजह से, लेकिन जो वो स्किल सेट जो हमने रैंडमली कोई प्रोजेक्ट करके सीखा, कोई वॉलंटियर करके सीखा, कोई छोटी मोटी जॉब्स करके सीखा, उन स्किल सेट को शो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अदरवाइज अगर सेम टू सेम एग्जैक्ट डेजिग्नेशन भी हो, देन भी कोई भी कैंडिडेट पास नहीं कर पाएगा अपना सीवी, क्योंकि रिक्वायर्ड स्किल सेट्स मैच नहीं कर पा रही होंगी। एटीएस कंप्लीटली अब कीवर्ड्स पे काम करता है। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बीइंग इंटरव्यूअर बहुत हजारों इंटरव्यूज करते हैं, कि लफ्जों का गेम आसान हो गया है। चैट जीपीटी ने एक बड़ा परफेक्ट हो गया। पिछले दिनों मैं एक इंटरव्यू कर रहा था एक बरखुरदार का, तो उसमें जो उन्होंने पोजीशन रखी वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैंने यार इससे तो मिलना है। और क्या देन यार रियलाइज कि वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता था, वो कुछ नहीं जानता था उनके बारे में, उसे कुछ नहीं पता था। बट वो इतना, और वो उसको ये भी नहीं पता था कि जो लिखा था उसका मतलब क्या था। ठीक है, तो लफ्जों का गेम इतना ज्यादा स्मार्टली हो गया कि अपनी अब जो अंग्रेजी नजर आ रही है, इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो अपनी नहीं होती वो किसी और की होती है। तो उस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस इंटरव्यू में आप चेक करो कि स्किल्स कितनी हैं, क्या है। अदरवाइज तो पुराने जमाना था, पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन छापते थे, 6-6 पेजेस के सीवी होते थे। तो चीजें, बिल्कुल सही बात है। अर्श भाई आपकी तरफ आता हूँ। इंटर्नशिप्स और सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार्ट ऑफ कैरियर में। हम जो बार बार हमने स्टार्ट टॉपिक ही हमारा ये है, बिल्डिंग एक्सपीरियंस विदाउट अ जॉब टाइटल। तो सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स कितनी मैटर करती हैं और किस तरह उसका फायदा उठाया जा सकता है? ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और यही फ़ायदा देंगी जो हमारी यूथ को जॉब तक लेके जाएगी। देखिए, आप एक सिनेरियो ले लें। मिसाल के तौर पर आप मार्केटिंग पढ़ के आए हैं, तो आपसे पॉसिबल क्वेश्चन क्या है? कैन यू डिज़ाइन अ कैंपेन? आप आईटी पढ़ के आए हैं तो सीधा सा क्वेश्चन होगा, कैन यू बिल्ड अ वर्किंग प्रोडक्ट? हैव यू डेवलप्ड सो फॉर एनी एप्लीकेशन? डू यू नो हाउ टू डेवलप अ वेबसाइट? या अगर आप जो है वो फाइनेंस से आए हैं तो कैन यू एनालाइज अ रियल कंपनी डाटा? डू यू नो, कैन हैव यू डेवलप सो फार चार्ट ऑफ अकाउंट्स? तो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स। अब आप इसको रिलेट कर लें कि अगर आपने इंटर्नशिप की है, और इसकी बड़ी तफसील हमें अबू बकर साहब ने बताया है कि वो बच्ची जिसने अपना छोटा सा काम किया, उससे उसने कितनी चीज़ें निकाल ली। तो वो कस्टमर हैंडलिंग भी जान गई, वो अकाउंट मैनेजमेंट भी जान गई, वो लॉजिस्टिक्स को भी जान गई, वो रिसोर्स को भी जान गई। तो अब ये देखें, एक एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके जो सब टास्क थे वो 4-5 हैं कि जो 10 जगहों पे काम आ सकते हैं। तो ये है कि आप अपनी इंटर्नशिप को करें। और इवन जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप हालांकि किसी कमेटी का हिस्सा हैं, आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ कमेटीज का हिस्सा हैं, अब वहां से आपने क्या सीखा? ठीक है, हैंडल्ड अबाउट 10 मेंबर्स टीम, ठीक है, सॉल्व्ड से मैंने 6 प्रॉब्लम प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग मेंबर और ड्यूरिंग ऑफिस बियर ऑफ माई सोसाइटी। तो अब आप नंबर्स की बात करें और जो आपने काम किया है उसे अचीवमेंट की शक्ल दें। सिर्फ ये ना हो कि आप जेडी छापे। जेडी पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, एक। और
ये भी नहीं तो की जाती कि आप झूठ बोलें, क्योंकि झूठ बोल के शायद आप वो जो ट्रैकिंग सिस्टम है उससे तो निकल जाएंगे, एटीएस तो आपको आगे ले आएगा, लेकिन उसके बाद के मराहल में जैसे आपने खुद बात की कि वो साहब आए और उनके पल्ले तो कुछ भी नहीं था। और मजे की बात तो ये, और फिर ये मुझे तो ये भी तजर्बा हुआ कि उसने कहा कि यार ये तो मैंने बड़े भाई के सीवी से जो है ना वो कॉपी किया था। तो अच्छी बात है, आपके भाई से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर इट विल नॉट वर्क एट द वर्क प्लेस। एक चीज। तीसरी अहम बात इसमें यह है कि जब आप जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो मुझे ये जाती तौर पर तजर्बा हुआ कि किसी ने आके कहा कि जी जहां आपने भेजा था उनका फर्नीचर अच्छा नहीं है। तो भाई आपको फर्नीचर से क्या काम है, कितने घंटे आपने बैठना है? एज ए इंटर्न आपको 3 या 4 घंटे वहां पे बैठना है। एक ने ये शिकायत की कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी, मगर मेरा वही काम जो मैनेजर है वो आके जाके अपने नाम से प्रेजेंट कर रहा था। भाई यू आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो ले रहा है, आप वहां पे क्रेडिट लेने नहीं, एक्सपीरियंस लेने गई हैं, उस तक रहे ना। तो वी नीड टू बी रियलिस्टिक एट अ वर्क प्लेस, वी नीड टू बी रियलिस्टिक वाइल वी आर डूइंग अ इंटर्नशिप। वी फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, जहां से आपने स्किल निकालनी है और उसे एक्शनेबल वर्ड्स में अपने सीवी के अंदर डालना है जी। थैंक यू सो मच। अबू बकर साहब, सर आपकी तरफ आता हूँ। सर वॉलेंटियरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे, इवन आज के दौर में नहीं, आज से जब बहुत पहले भी वॉलेंटियर होना एक चीज है। बहुत लोग होते हैं, सोसाइटीज हैं यूनिवर्सिटीज में, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो प्रॉपर, जो आप कह रहे हैं कि जो टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें सोसाइटीज होती हैं, वॉलेंटियर प्रोग्राम्स होते हैं। ये क्या रियल एक्सपीरियंस में काउंट होते हैं, या इसको रियल एक्सपीरियंस में काउंट किया जा सकता है, या कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको प्रेजेंट किया जा सकता है? Again, as HR, if you ask me my personal opinion, I usually look at this as a very positive indicator of someone who has, during their university 4 years, 3 years, or 1 year, 2 year master's program, have invested time in any kind of volunteer work. So it does help the hiring manager or the recruiter give you a sense check of how you have been investing your time and what cause are you investing your time in. For example, a lot of times universities में blood donor societies होती हैं, या फिर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के स्कूलिंग सपोर्ट के लिए सोसाइटीज होती है, उसमें जाते हैं और आप वहाँ टीचिंग करते हैं। लम्स का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लॉट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज। Lot of times the volunteer work happens when you are engaged in some academic work, जैसे HEC की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स भेज दिए वॉलंटियर करने के लिए। सो आई बिलीव it is free work, but if you are able to sell it in the right way. So for example, if you were an usher at a event and you were just handling awards and certificates, let's say, and you were on stage in front of hundreds of people, कोई ऑडिटोरियम में 500,000 लोगों का, उसमें सामने आप स्टेज पे बारी बारी जा रहे हैं, प्रेजेंटर्स को आप वो दे रहे हैं, शील्ड्स पकड़ा रहे हैं, वो आगे दे रहे हैं, आपकी भी तस्वीरें खिंच रही हैं, कैमरा आपको देख रहा है। That is giving you a lot of confidence in front, of standing in front of people. And you can showcase that, you can narrate that when you go for a job interview or for an internship even, कि जी मैंने ये किया हुआ है, मैंने इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने मल्टीपल टाइम्स स्टेज पे प्रेजेंस रखी है। या आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया किसी लेट्स से अंडर प्रिविलेज सोसाइटी में जाकर, वहाँ के किसी स्कूल में जाके आपने बच्चों से एंगेज किया, तो आपने उस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, आप उनके बारे में सेंसिटाइज हो गए हैं, आप आगे भी इस काम को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आके फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो आई बिलीव as a single answer, yes, it adds value. What you or me or anyone who's in that age can think of is how do they do relevant volunteer work. सो फॉर एग्जाम्पल कोई HR की कॉन्फ्रेंस हो रही है, या कोई इंजीनियर है तो IEEE की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करें और आप कहें कि जी मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ। आप कुछ भी काम कर रहे होंगे, स्पीकर्स बोल रहे होंगे, आपके कान सुन रहे होंगे, आपकी आवाज, आपको बहुत सारी लर्निंग वैसे ही आ रही होगी उस पूरे इवेंट में। तो आई थिंक दैट डज एड वैल्यू। हाउ यू use that experience, how you book it, package it and sell it to a potential employer is very important.
थैंक यू साहब। और जहां तक बात है कनेक्शंस, हम अब बात करते हैं, जो कनेक्शंस है ना, इट्स अ न्यू करेंसी। और तो Absolutely. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉलेंटियर वर्क का। और अच्छा काम कर रहे हैं, चीजें हैं, आप नजर में आते हैं, आप रिपोर्ट बनाते हैं, आप सीखते हैं। आप एक नॉर्मल घर में बैठा हुआ बच्चा और एक वो जो वॉलेंटियर कर रहा है ना, उसके एक्सपोजर में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रॉब्लम Absolutely. सॉल्विंग स्किल, हैंडलिंग, लोग आपको जान जाते हैं। और जैसे आपने कहा, और इस चीज को बड़ा पॉजिटिव लिया जाता है कि आपने 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 अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया। बाहर जो स्पोर्ट्स में स्कॉलरशिप मिलते हैं, वो इसलिए नहीं मिलते कि उन्होंने दौड़ा के जीत पैसे कमाने होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वो आपकी आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं कि आप कितने इन्वॉल्व हैं किन चीजों में। एक क्वेश्चन है जिशान, आपकी तरफ आता हूँ। अयूब साजिद साहब पूछते हैं जी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पेड वर्जन ऑफ दिस जॉब आई कैन डू राइट नाउ टू गेट। उनका ये कहना है कि कोई ऐसे काम हमारे इस वक्त सोसाइटी में मौजूद हैं जो पेड भी हो, बेशक थोड़ी पेमेंट हो, बट मैटर करें, मेरे मेरे कैरियर में आ जाए, मेरे उसमें आ जाए। तो क्या ऐसी कोई चीजें इस वक्त आपको लगता है हम रिकमेंड कर सकते हैं अपनी यूथ को या स्टूडेंट्स को? जी जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। इसके लिए थोड़ी क्लियरेंस भी ये चीज़ चाहिए होगी कि क्या वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, क्या वो वर्किंग एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में हैं, काम भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं। इन सारे सिनेरियोज में अगर आप फ्रीलांस के तौर पे काम करना चाहें तो अपवर्क, Guru.com, फाइवर, इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कर सकते हैं। ऑल वी नीड टू डू कि हमें देखना चाहिए कि हमारा अपना क्या स्किल सेट है। एआई की अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, तो बहुत सिंपल है, आप सिर्फ एआई पे जाएं और बताएं कि मुझे ये काम मैंने किए हुए हैं, क्या इसके रेलेवेंट कोई भी ऐसी सर्विस है जो मैं फाइवर पे, अपवर्क पे ऑफर कर सकता हूँ, तो वो वहां पे किए जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने टैक्स फाइलिंग की बात की, तो ये भी सर्विस है जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और वो मैटर ही नहीं कर रहा कि वो ऑल्दो कि उनके पास कोई फाइनेंस की डिग्री है या नहीं है। और ये आने वाले दिनों में इसका रुझान भी ज्यादा है। अब तो आम जो लोग हैं वो भी इसको बहुत सारे कॉन्शियस हो चुके हैं। इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर इस तरफ लाइफ आ चुकी है कि आपको प्रॉब्लम है कि कुछ भी मिल जाए करने के लिए, तो आप अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची किसी भी बिग सिटी में है, वहाँ पे आपको आईबेक्स मिल जाएगा, वहाँ पे आपको माइंड ब्रिज मिल जाएगा, टॉप नॉच कंपनीज आपको मिल जाएंगी, कोई ना कोई मेडिकल बिलिंग की कंपनी मिल जाएगी, वहाँ पे आराम से आप कॉल सेंटर में जाके जॉब कर लें, वो आपको मिल सकती है। अगर आप अगेन इसमें नहीं जा सकते, आपको लगता है आपका कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप किसी भी फूड चेन पे चले जाएं, आज नहीं तो 15 दिन में डाउन द लाइन आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसी जॉब के जिससे आप एटलीस्ट अपना ब्रेड अर्निंग का जो है मॉडल वो चला सकें। अगर आपको ये मैटर नहीं कर रहा कि वहां से, तो मैंने अगेन तो किसी हार्ड कोर डेजिग्नेशन में जाना है, तो अगर तो आप ब्रेड अर्नर हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम में है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये सारी चीजें कही आपको थोड़ी देर पहले। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ क्या कि प्लीज। खास तौर पे देखें, इस वक्त बच्चे, यंग जनरेशन, प्रेजेंटेशन बना के अर्न कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं पैसा कमाना के वर्ड यूज करूंगा लगेगा लोग। देखिए, बात होती है कि आपको एक स्किल भी आ गई, आपने थोड़ी सी मेहनत की, एस्थेटिक सेंस डेवलप हुई। मैंने एक मेरे एक सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट कह लें, उन्होंने मुझसे कहा जी, एक थोड़ा इरेलीवेंट है बट मैं आपको अपने एक डॉक्यूमेंट रिव्यू कराना चाहता हूँ, मेरा पहला काम है। मैं कहा जी बना दो। तो वो किसी ने नाइजीरिया या फिर इस तरह कोई मुल्क था, उसके कैसीनो के रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके। उसका असाइनमेंट था, उसने जाहिर बात यहाँ बैठ के कह रहा था, और मेरे से कितने पैसे, उसने $300 चार्ज किए थे उनको। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि देर आर लॉट ऑफ वर्क। और अब आप अपनी स्किल को डेवलप करें। ये बड़ा वैसे एक्चुअली क्वेश्चन सादा सा लगता है, बट अच्छा क्वेश्चन था। देर आर वेन्यूज जहां पे आप अर्न भी कर लेंगे, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव भी कर लेंगे, स्किल भी सीख लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है, आपकी तरफ आता हूँ, रफीक साहब का क्वेश्चन है, व्हाट स्किल्स कैन बी डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट? है मे बी एंटरप्रेन्योर हो, बट वो स्किल्स डेवलप करते रहे, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है अभी। जी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन दिस वेबिनार। मैं समझता हूँ कि हमारा टॉपिक भी यही है कि विदाउट जॉब टाइटल आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। देखिए, एक तो है फॉर्मल इंटर्नशिप जो आप इंस्टीट्यूशंस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका हमने पहले काफ़ी जिक्र कर लिया है। एक है जिसको इंटर्नशिप, जिसको मैं अक्सर जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, सेमिनार्स में प्रमोट करता हूँ, वो ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा रहे और आप नहीं जाना चाहते फॉर एनी रीज़न, हम उस वक्त इस बहस में नहीं जाते, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पेजेस
आमतौर पर बगैर कोई इन्वेस्टमेंट के आप बना सकते हैं। आप वहाँ पे खा फेसबुक पे हों, आप ट्विटर पे हों, या आपके और बहुत सारे नाम हैं, लिंक्डइन भी है, प्रोफेशनल भी हैं। आप वहाँ अपना स्किल सेट दें एंड ऑफर योर सेल्फ कि जी मैं आपकी असाइनमेंट्स में प्रोफेशनल पर्सनल अवेलेबल हूँ, और मुझे खुशी होती है व्हेन आई वर्क विद सीनियर पीपल। तो आप जब लोगों को, अब वो अगर आप ज़ाहिर अकाउंटेंसी पढ़ी है तो आप उसी तरह की अपनी स्किल सेट को वहाँ पे नुमायाँ करेंगे। आप आईटी में तो उसका होगा, एचआर का ग्रेजुएशन की है तो आप लिखिए जो एचआर फंक्शंस हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जीशान जैसे बंदे जो है वो आपको फौरन हायर कर लेंगे, क्योंकि ये तो खुद इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, काम तो पता नहीं किस अदारे में जाके करते हैं। तो ये आपको बहुत सारी ऐसी असाइनमेंट मिलेंगी जो लोग खुशी से आपको देना चाहेंगे। और अच्छा, अब आगे दो चीजें हैं। एक तो ये है कि क्या आप जो हैं वो पेड सर्विसेज दें या अनपेड आप उसको कर रहे हैं। मेरी राय होगी कि स्टार्ट विद अनपेड, और जिस तरह से उसकी एक लेवल आएगा, क्योंकि बहुत बेसिक काम करने के आप क्या डिमांड कर सकते हैं, बट आई बिलीव कि व्हेन यू सब्सटेंशियली सपोर्ट पीपल इन देयर वर्क, तो दे देमसेल्फ विल ऑफर यू समथिंग। या ये है कि जी आप 2 घंटे का 3 घंटे का काम जो है वो मैं आपको वॉलंटियर बेसिस पे दे सकता हूँ, बट इफ यू नीड मोर टाइम आई वुड रिक्वेस्ट यू फॉर एन ऑनरेरियम। यानी आप पहले शो करें, फिर आप अपनी स्किल सेट डिमॉन्स्ट्रेट करें, और तीसरे दर्जे में जाके आप अर्निंग की बात करें। तो उसका फायदा क्या होगा कि आप पैसे तो शायद ज्यादा ना कमा रहे हों, मगर विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम, जैसे 6 मंथ टाइम में, 8 महीने में, आप एक अच्छी स्किल सेट जो डिमॉन्स्ट्रेट की जा सकती हो, प्रेजेंटेबल हो, वो अपने सीवी में शामिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और मीनवाइल एक जो फायदा बड़ा आपको होगा कि वो रिक्रूटर्स, और ख़ास तौर पर जो लिंक्डइन वगैरह के अंदर जब आप इस तरह की सर्विस देते हैं, तो जो ऑटो सर्वर हैं मुख्तलिफ, जब वो हेड हंटिंग कर रहे होते हैं तो वो आपके काम को रीड आउट करते हैं और वो आपको खुद सेलेक्ट कर लेते हैं। और समटाइम्स आपको लिंक्डइन और इस तरह के जो साइट्स हैं वो खुद आपको अपॉर्चुनिटीज भेज रही होती हैं, या उन सर्चेज के नतीजे में कि जो प्रोफेशनल रिक्रूटर वहां पे रन कर रहे हैं उनको आपका डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो हर दो सूरतों में आप शुरू तो जो है वो बगैर किसी अदारे में जाए काम शुरू करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू विल लैंड इन अ अर्निंग मूड, एंड यू विल लैंड इन अ गुड जॉब। थैंक यू सो मच। हमने लोगों को वॉलेंटियर काम करके अपनी जगह बनाते देखा है और फिर इरिप्लेसेबल होते देखा है कि वो उस जगह की जरूरत बन गए। आई वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक श्रीलंकन लड़का था, जेनिटर के तौर पे आया था, जेनिटर के तौर पे, बट वो ही वाज अ कॉमर्स ग्रेजुएट। शाम के टाइम वो आईटी वालों के साथ बैठता था, आईटी में भी उसका एक श्रीलंकन था। और कुछ अरसे बाद हमें वो साहब छोड़ के चले गए आईटी वाले, और पता चला कि एक पर्टिकुलर काम था जो उस लड़के के अलावा कोई कर नहीं सकता था। वी शिफ्टेड हिम फ्रॉम जेनिटर टू फंक्शनल अकाउंटेंट। एनीवे, अबू बकर साहब आपके पास सर एक आता हूँ क्वेश्चन है ताहा साहब का। आई एम अ फ्रेश साइकोलॉजी ग्रेजुएट and want to pursue my career in HR, organization development, and corporate sector. What could be the way to pursue my career in this field, or BBA or MBA is necessary for it? No, I don't think so. I know a lot of people who have had a psychology background and they have entered the field. And they obviously start small with a psychology background. You are not obviously very well versed with HR systems because आपकी academic training नहीं हुई भी. What you can do is to boost up your HR profile, you can go for a recognized certification that gives you very good, heads up to tools that are used in HR. And you can use your psychology degree to engage with people. For example, आप talent acquisition में काम कर सकते हैं. Talent acquisition में जो initial score roles होते हैं वो recruiters के होते हैं, वो applicant screeners के होते हैं, where you can help. अब तो obviously tools आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान being a little lazy in adopting tools, हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े इदारों में भी अभी ATS tools available नहीं हैं.
हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं, लेकिन बाद में वही काम हो रहा होता है जो डाक आने वाला होता है. सो योर स्किल सेट कैन बी यूटिलाइज्ड देयर, बट इन आइसोलेशन विद अ साइकोलॉजी डिग्री इट इज नॉट वेरी इजी, बिकॉज अभी जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बताया था कि जितना ग्रेजुएट हर साल निकलता है उसमें एक सर्टेन फ्रैक्शन जो है वो साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स का भी होता है, एक सर्टेन फ्रैक्शन एचआर ग्रेजुएट्स का भी होता है. So you have to compete with them, and you have to have something additional to stand out rather than lacking something which others will have. So आपके लिए वो लड़ाई लड़ना थोड़ा सा टफ होगा, but I think you should start now, and you should be able to do it. बेटर प्लेसमेंट हो सकेगी, जाहिर बात है, अगर आप उसके साथ आते हैं तो यू कैन प्लेस बेटर. निशान, आपकी तरफ आता हूँ, आप ही से रेलेवेंट क्वेश्चन है. यूसुफ बुखारी साहब, हाउ कैन ऑनलाइन कोर्सेज ट्रांसलेट इनटू क्रेडिबल एक्सपीरियंस? यू आर रनिंग एन इंस्टीट्यूट एक्चुअली, ट्रेनिंग्स होती हैं और बहुत लोगों से वास्ता भी पड़ता है, तो ऑनलाइन, खैर अब ऑनलाइन कोर्सेज ट्रांसलेट, लेकिन ऑनलाइन जब चीजें आई तो रियल भी हैं, फेक भी हैं, तो Yes. ये इनका कहना है कि जी क्रेडिबल एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा या क्या होगा? बता दें कि कौन सा ऑनलाइन क्रेडिबल होता है, कौन सा नहीं होता. Perfect. वैसे इनका अच्छा. इंस्टीट्यूट भी ऑनलाइन ही कोर्स करवा रहा है. talk about this. Thank you so much. Conflict of interest हो गया यहाँ पे. इसीलिए बोलूं कि क्या रेलेवेंट है. सो एक दौर था कि ऑनलाइन कोर्सेज जो थे वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर तक महदूद थे. अब बहुत सारा जो ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं वो ऑलरेडी प्रैक्टिकल असाइनमेंट बेस्ड हैं. क्योंकि यूट्यूब पे भी लर्निंग मटेरियल तो बहुत ज़्यादा मौजूद है. जो चीज़ नहीं मौजूद वो है क्रॉस क्वेश्चन. जो नहीं मौजूद वो है असाइनमेंट बेस्ड वर्क, और देन उसको रिव्यू किया जाना और देन उसके बेसिस के ऊपर काम करना. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एक प्रैक्टिस थी जिसको हमने अडॉप्ट किया, और वो ये था कि जब भी लेक्चर कंप्लीट होगा और जब असाइनमेंट आप देंगे तो असाइनमेंट ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ कोई चैट जीपीटी बेस्ड आप एक आर्टिकल लिख दिया, या जो भी आपने कोई शीट बनाई है, कोई एनालिसिस बनाया है, कोई रिपोर्ट बनाई है, कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, आपने उसको वीडियो में आके एक्सप्लेन करना है जो भी आपने बनाया है. सो अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं और अगर वहां पे कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स का, तो अपने लिए आप खुद क्रिएट कर लें और कोशिश करें कि अपने लिए आप असाइनमेंट बनाएं और उन असाइनमेंट्स को आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स में रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, और देन आपके फेलो कोलीग्स को वो शेयर कर लें. अगर आज दो के उस इंस्टीट्यूशन का शायद वो ऑप्शन नहीं भी है तो जो आपके फेलो कोलीग्स हैं उन तक शेयर कर लें कि जी ये सेशन मैंने लिया था, उसमें इस रिपोर्ट की बात की थी, इस एनालिसिस की बात की थी, जिसको मैंने बनाने की कोशिश की है, अपना डिजाइन करने की कोशिश की है, इस पे ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है और इसको मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है. तो अपने कोलीग्स का आप जो है ना उसके ऊपर ओपिनियन ले लें. अगर आल्दो इस वक्त ऑलमोस्ट 99% ऑर्गेनाइजेशंस, वो तमाम अदारे जो ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं वो हैं ही प्रैक्टिकल, क्योंकि अदरवाइज जो है वो इतना ये सस्टेनेबल मॉडल ना होता जिस तरह से मार्केटाइज किया जा रहा है. और जो आप अगर मार्केटिंग के रेलेवेंट उनका कोई वीडियो देखते भी हैं तो उसमें बात ही ये की जाती है कि आप ये कर पाएंगे, ये कर पाएंगे और ये कर पाएंगे. तो वो इस ये को आप चेंज कर लें उन 3-4 चीज़ों से, तो द आंसर इज दैट के जो भी जिस भी रेलेवेंट वो कोर्सेज करवाए जा रहे होते हैं उस रेलेवेंट कुछ ना कुछ स्किल सेट के बाद कोई प्रैक्टिकल चीज उसके साथ एसोसिएटेड होती है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आप ये कर पाएंगे प्रैक्टिकली. और ड्यूरिंग द कोर्स अगर आप प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें तो देन देर आर चांसेस कि आप उसको एंड पे भी कर सकेंगे. लेकिन बाज़ औक़ात होता क्या है कि कैंडिडेट्स जो भी कोर्सेज की तरफ जाते हैं वो उसको यूनिवर्सिटी की तर्ज पे ले लेते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी की तरह इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे और देन एंड पे जाके हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे. अगर आप ड्यूरिंग द स्टडीज जो भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, अगर आप साथ साथ उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कुछ किसी भी चीज की आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो उतना सूटेबल नहीं हो पाएगा. थैंक यू सो मच. अच्छा भाई, आपकी तरफ आता हूँ. हाउ कैन यूथ कन्वर्ट एकेडमिक नॉलेज इनटू मार्केट वैल्यू? जी बिल्कुल. इस पे उसे किए बगैर हम सीवी को अट्रैक्टिव
या एक्सेप्टेबल नहीं बना सकते। मगर जो बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ टू कन्वर्ट द एकेडमिक नॉलेज इनटू एबिलिटी और इनटू डिमॉन्स्ट्रेटेबल स्किल, तो वो सारा प्रोसेस है जो अब तक हमने गुफ्तगू की है कि गो फॉर इंटर्नशिप, गो फॉर एनी योर कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, और आप उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको जो काम है, जैसे पहले भी एग्जांपल हमने दी थी कि आपने कोई सोशल वर्क किया है तो जाहिर है किसी टीम के साथ काम किया है, तो यू हैव द स्किल टू वर्क इन टीम्स, आपको इस तरह से उसको परफॉर्म करते हैं। अगर आपने किसी स्टॉल पे काम किया है तो यू हैव अ सेलिंग स्किल्स, यू हैव अ पीपल स्किल्स। ठीक है, अगर आपने लोगों को फैसिलिटेट किया, जैसे कहा कि आप आशर हैं किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो यू नो हाउ टू सपोर्ट एंड फैसिलिटेट पीपल इन मेगा इवेंट्स। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो काम किए उनको एक्शनेबल वर्ड्स के अंदर आप लेके आए। तो फर्दर कोई अगर अपने शोबे की बात करे तो फिर हम उस पर मज़ीद बात कर सकते हैं। मीनवाइल चैट के अंदर हमने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है कि आप आज की गुफ्तगू नतीजे में अगर मोटिवेटेड हो जाएं, होना चाहिए, तो फिर वेयर टू स्टार्ट, कि किस तरह से आप वीक वाइज अपना प्लान बनाएंगे और अगले चंद महीनों के अंदर आप अपने स्किल सेट को इस लेवल तक ले जाएं कि आप जो एम्प्लॉयर है वो आपसे ये ना पूछे कि आपने अब तक किया क्या है, आपका तजुर्बा क्या है। इट शुड बी विजिबल इन योर सीवी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक आखिरी क्वेश्चन है आज का, हम लेते हैं। अबू बकर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। हारिस अब्बास साहब पूछते हैं, क्या सेल्फ लर्निंग प्लस रियल प्रोजेक्ट्स ट्रेडिशनल इंटर्नशिप से ज्यादा पावरफुल हैं या हो सकते हैं? It depends on the opportunity that you have. If you're going to a very structured internship program at a reasonably good employer who have standardized their internship program that adds value to the organization, then there's no namal badal to an internship because it takes you to a real life environment of an organization. You have the look and feel. You go travel. You go clock in on time, clock out on time. All of that. So I believe that's the right thing to do, and that's a must have. आज हमारा टाइम भी इख्तिताम को पहुंच चुका है, तो जीशान साहब, क्लोजिंग लाइन, वन लाइनर मैसेज फॉर अवर ऑडियंस रिगार्डिंग द टॉपिक। सर, रिगार्डिंग द टॉपिक भी जो अरशद आकिब साहब ने मेंटोर की बात की थी, मैं उसी तरफ आऊँगा। कि मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन अगर आपकी डोमेन के रेलेवेंट अगर आपके पास मेंटोर होगा तो आपका जो पेस है, आपका जो अचीवमेंट का साइकिल है, वो बहुत स्मूथली हो जाएगा और जो आप अचीव करना चाहेंगे वो आप जल्दी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मेंटोर्स को किसी भी स्टेज पे, आप स्टूडेंट हैं, आप इंटर्नशिप में चले गए हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब आप किसी काम में आ गए हैं, और आप मिड कैरियर पे हैं, आप अपर मिडिल कैरियर पे हैं, जहां भी आप हैं, जिस भी स्टेज पे हैं, आपके पास मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बड़ा स्टिक हूँ अपने पॉइंट को लेके कि आप कोई भी काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, आप काम कीजिए और उससे रेलिवेंट स्किल को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। सो मच। अबू बकर साहब, क्लोजिंग मैसेज फॉर अवर ऑडियंस। I think the most important thing right now is to adapt yourself as much to AI tools as you can, learn about them. ज़रूरी नहीं है आप हर टूल मास्टर करें, लेकिन आप अपने फील्ड से रिलेटेड टूल्स के बारे में आगाही लें, पढ़ें, समझें, उन टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। ऑलमोस्ट लॉट ऑफ दोज टूल्स हैव फ्री वर्जन्स दैट यू कैन यूज। आपके मोबाइल फोन्स में अगर आप एप्पल यूजर हैं, आपके पास AI एजेंट मौजूद है, आप एंड्रॉयड यूजर हैं, आपके पास जेमिनाई है, आप किसी भी तरह से चैट जीपीटी एज द स्टार्टर टूल, आप हर बंदे ने कहीं ना कहीं उसके साथ खेल कूद की भी होगी। सो लर्न करें उन टूल्स की। प्रैक्टिकलिटी ये है कि अब वो जिस लेवल पे आपकी इंटरेक्शन बढ़ती रहेगी टूल के साथ, वो लर्न करता रहेगा, बिकॉज दीज आर LLMs। और अब एजेंटिक AI के ऊपर दुनिया जा रही है, इसको स्टडी करें। रिसेंटली अभी डॉक्टर जिशान उस्मानी आए हुए थे पाकिस्तान। आई मेट हिम ब्रीफली। ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। हम US में साथ ही थे। वो किसी और स्टेट में होते थे, मैं किसी और स्टेट में पढ़ रहा था। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। आई टेक अ फ्यू सेकंड्स टू जस्ट टेल यू दैट ही सेड, राइट नाउ ऑल माय वर्क इज बीइंग डन बाय 5 agents
and I am sitting and just watching Netflix and reading my Quran tafsir and talking to people. बिकॉज ही सेड मैंने उनको इस लेवल पे अपने एजेंट्स को डेवलप कर लिया है कि वो एक दूसरे को काम टास्क देकर काम करा रहे हैं और मेरा सारा काम हो रहा है, मेरा सोशल मीडिया हैंडल हो रहा है। और फनी बात ये थी कि उन्होंने कहा एक एजेंट मेरी वाइफ के मैसेजेस को भी रिस्पॉन्ड करता है, उसने मुझे पूरा पर्सनलाइज कर लिया है। उसका तो मैं भी तो मालूम करना चाहूंगा कौन सा है वो चीज इम्पोर्टेंट। So I think this is my message. We are all learning. हम इस स्टेज पे हमारे जैसे करियर के लोग जो अपने एक हाई लेवल पे पहुंचे हुए हैं, हम बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करेंगे अगर हम इन टूल्स की अंडरस्टैंडिंग ना लें, इन टूल्स को अडेप्ट ना करें, और हम बहुत सेकंड्स, डेज, वीक्स में हम पीछे रह जाएंगे। So I think for you guys, the journey is the starting point is the easiest point. So आप अभी से इन चीजों को जो है ना अपनी वर्क लाइफ में लेके आना शुरू करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अर्शद भाई, क्लोजिंग लाइन। जी, दो बातें यूथ के लिए कहना चाहता हूँ। पहली बात कि जॉब और काम के हवाले से हालात अच्छे नहीं हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हालात बुरे हैं, क्योंकि नाउ यू विल डबल द योर हार्ड वर्क, और इसके नतीजे में आपका सफ़र जल्दी कटेगा और आप बेहतर पोजीशन में होंगे, क्योंकि हार्ड वर्क जो है वो आपकी स्किल्स को और पर्सनैलिटी को पॉलिश करता है। सेकंड, इफ नो कंपनी हायर्स यू, you can hire yourself. Hire yourself and do even free of cost work, and you will develop your skill set for a very good job. बहुत शुक्रिया। ऑडियंस, एक्सपीरियंस बिगिंस द डे यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट द डे यू गेट हायर्ड। जिस दिन आपने समझ लिया, रिस्पॉन्सिबल हो गए, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, जैसे भी अर्शद भाई ने कहा कि आप खुद अपने आप को हायर कर लें, स्किल सीखें, टाइम जाया मत करें, चीजें बहुत अवेलेबल हैं और सिचुएशन टफ से टफ होती जाएगी, बट नो हार्म, हार्डवर्क का मौका है, चीजें हैं जो ज्यादा ग्रो करेंगे, जो ज्यादा अच्छे स्किल सेट होगा, जो ज्यादा ग्रूम करेंगे, वो ज्यादा ज्यादा चीजें अचीव करेंगे। इसके साथ ही हम आज के वेबिनार के इख्तिताम करते हैं। अबू बकर साहब, जिशान साहब, अर्शद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा सेशन गुजरा। ऑडियंस आपका बहुत शुक्रिया, आपके सवालात का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले महीने वेबिनार नंबर 54 के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।